ہم لوگ روزانہ جلسہ پڑھتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، مگر اتنا فٹ اور تندرست مجمع کبھی کبھی کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو جس جلسے میں اولاد رسول کی آمد ہو جائے، اس جلسے کی روح ہی یہی کہتی ہے کہ اب صبح تک اس جلسے کے آخری خطیب کے آخری جملے تک جلسہ زندہ رہے گا۔ میں نے پیر بھی بہت دیکھے صاحب، ایسے ایسے پیر دیکھے جن کو اپنے مریدوں کے تعلق سے کنفیوژن رہتا ہے، مگر یہ اولاد رسول کا دامن جسے مل جائے، صرف یہی ایک خاصیت رہتی ہے اولاد رسول میں کہ وہ اپنے مرید کو جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ جو پیر یہاں کسی مرید کو نہ جانے تو وہاں کیسے پہچان پائیں گے؟ اور جو پیر اپنے مرید کو یہاں پہچانتے ہیں، وہ مرید دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ ان کا پیر وہاں بھی پہچان ہے۔ اولاد رسول ہے صاحب، اولاد رسول اگر مسکرا دے ہمارے لیے تو اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اولاد رسول کو انسان اگر ناراض کر دے، زندگی بھر کی عبادت اللہ اس کے چہرے پہ مار کے کہے گا تو نے میرے نبی کے بچوں کو پریشان کیا تھا۔ اولاد رسول کی جب بات آئی تو میں آپ کو اس ہندوستان کی پاکیزہ دھرتی پر اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں گے پتہ چلے گا، ہمارے اس مہاوشال ہندوستان میں جہاں جہاں آج اسلام نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہاں پر خطیبوں کو یعنی وقتہ کو بھی پیسے دیے جاتے ہیں، ماشاءاللہ، یہ حضور کے قدموں کی برکت ہے۔ جیشان بھائی نے تو اس قدر پڑھا کہ یہ بھی کئی سال کا یاد رکھیں گے، اور آج ایسا لگ رہا تھا کہ قریبی بارش ہو رہی نہیں بلکہ قریبی آندھی آ رہی ہے۔ بارش کبھی کبھی اس کی بوندیں گرتی ہے ٹھوک ٹھاپ کہیں کہیں، اور آندھی آتی ہے تو سب لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں دیکھوں گا کہ میری اس مختصر ترین گفتگو میں اگر میں آپ کو پرکھ پاؤں، حالانکہ فرمائشیں اور خواہشیں بہت سارے لوگوں نے ظاہر کی کہ حضرت اس موضوع پر، حضرت اس موضوع پر، مگر جو میرا دل کہتا اور جو ہمیں حضرت نے کہا کہ بیٹا آج تم بول دو، حضرت نے فرمایا کہ آج تم بول دو پھر میں دیکھ لوں گا، اب تک میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ مجھے کیا بولنا ہے، لیکن حضرت نے فرما دیا کہ بول دینا ہے تو میں بول دوں گا۔ میں کہہ رہا کہ اس ہندوستان میں، جس ہندوستان کو کسی زمانے میں گائے کے پیشاب پینے کا ہندوستان کہا گیا، جس ہندوستان میں لوگوں نے جانوروں کی لید کو اپنے لیے خوراک سمجھا، جس مہاوشال ہندوستان میں کروڑہ کروڑ خداؤں کو لوگوں نے، یہ کروڑہ کروڑ بتوں کو لوگوں نے خدا مان رکھا تھا، اس ہندوستان میں اگر کسی نے اسلام کا چراغ جلایا ہے تو وہ اولاد رسول ہے۔ حالانکہ اوروں کی بھی اس میں خدمات شامل ہیں، مگر ہر موڑ پر جب جب ضرورت پڑی نبی کے بچوں نے اپنی جان کی قربانی لگا کر اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ سرکار غریب نواز کی تاریخ پڑھیں آپ صاحب، سرکار غریب نواز جس ہندوستان کے لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا آج ان کے مزار اقدس میں جاتے ہیں، سرکار غریب نواز نے 1 2 4 5 1 2 ہزار 1 2 لاکھ نہیں، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت سرکار غریب نواز کے قدموں کی برکتوں سے ملی۔ اللہ سے ایک خطیب زندگی بھر تقریر کرتا ہے، زندگی بھر بیان کرے گا، مگر 1 2 آدمی کو متاثر نہیں کر سکتا۔ ایک امام 40 سال تک نماز پڑھا تھا ایک مسجد میں، 40 سال کے بعد وہ امام صاحب جب ان کی رخصتی ہوتی ہے گاؤں والے ان کا حساب کتاب کرتے ہیں، 40 سال کے بعد بھی ان کے پیچھے اگر 100 لوگ نماز پڑھتے ہوں گے تو ان 100 میں سے اگر 50 رونے والے ہوں گے تو 50 میں سے 10 20 ایسے ضرور ہوں گے کہ بہت اچھا ہوا سمجھ چلا گیا، ایسے بھی بولنے والے ہوں گے۔ یعنی 40 سال تک ایک امام صاحب جس گاؤں میں امامت فرمائے، 40 سال تک جس گاؤں میں اذان دے نماز پڑھائے، ان کی رخصتی کے بعد بھی وہ 100 لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتے، مگر سرکار غریب نواز نے اسی ہندوستان میں 1 2 نہیں 90 لاکھ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا۔ کون سے ہتھیار کا آپ نے استعمال کیا تھا؟ کیا آپ نے کبھی اس پہ غور کیا؟ آج کا زمانہ صاحب، آج بجلی کے کھمبے میں لوگوں کو باندھ کر پیٹ کر ایک مخصوص نعرہ لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔
आज हम अखबारात में पढ़ते हैं कि हमारे बच्चों को लोगों ने किसी जानवर के नाम पे पकड़कर कोई मखसूस नारा लगाने पर लोगों ने मजबूर किया, मगर गरीब नवाज की तारीख में बताती है कि सरकार गरीब नवाज ने किसी तलवार या किसी चाकू का इस्तेमाल नहीं किया था, किसी लेटेस्ट हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसके बदौलत गरीब नवाज के कदमों की बरकतों से हिंदुस्तान में 90 लाख लोग कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। जब हम तारीख पढ़ते हैं तो तारीख हमें बताती है नादान की नादानी करता है। एक आदमी बम्बार्डमेंट करेगा, वो बम्बार्डमेंट के जरिए किसी सामने वाले को वो अपना गुलाम बना सकता है ऊपरी एतबार से। एक आदमी चाकू दिखाकर किसी का सामान लूट सकता है, एक इंसान तलवार दिखाकर किसी को अपना नौकर वक्ती तौर पे बना सकता है, मगर एक आदमी जब किसी के दिल पे हमला करता है, एक आदमी जब किसी का दिल जीतता है तो वो आदमी पूरे फैमिली के साथ उस इंसान को हो जाता है। इसलिए अगर तलवार की ताकत होती तो 90 लाख लोग कलमा नहीं पढ़ पाते। अगर ये बम्बार्डमेंट की ताकत होती तो 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत न मिलती साहब। ये ताकत थी किस चीज की? गरीब नवाज के अखलास की ताकत थी, गरीब नवाज के मोहब्बत की ताकत थी, आपके सीरत की ताकत थी। आप मदीने वाले से जो पैगाम लेकर आए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, अखलाकी एतबार से, कैरेक्टर के एतबार से, आपने जो इस हिंदुस्तान में उस कैरेक्टर को जो आपने हाईलाइट किया, आप आगे बढ़ते रहे, लोग कलमा पढ़ते रहे, आप चलते रहे, लोग मुसलमान होते चले गए, आप आगे बढ़ते गए, ईमान बांटते चले गए। इसी हिंदुस्तान में गरीब नवाज के कदमों की बरकतों से मैं पूरा घूमता हूं, मैं पहचानता हूं लोगों को कि कहां कौन सी खुराक चाहिए। मगर एक बड़ा वाकया गरीब नवाज के ताल्लुक से आपको टेस्ट करने के लिए शुरुआती पीरियड में मैं दे रहा हूं। मैं जानना चाहूंगा कि गरीब नवाज के किरदार को आप कितना समझते हैं, किस तरह उसका एहतराम करना चाहते हैं। गरीब नवाज की बारगाह में असर की नमाज से जस्ट पहले एक साहब आए, वो साहब ईमानदार न थे, वो साहब मुसलमान न थे। आज हम में आप में बहुत सारे लोग होते हैं कि गैर मुस्लिम है, भगाओ, ये है वो है, अकीदा खराब है, ईमान नहीं है, इसको हटा दो। मगर गरीब नवाज ने तसव्वुफ का वो आखिरी बात खोलते हुए उस अपने आस्थाने से आपने अपनी आरामगाह से वो दिखाया। वो गरीब किसान मजदूर आपकी बारगाह में आया है और कहता है, हुजूर सरकार देखिए ना, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास चंद बीघा जमीन थी, मगर इस वक्त की हुकूमत ने मेरी जमीन को कब्जा कर लिया। यानी टैक्स की रकम वक्त पे जमा न करने की वजह से, लगान न जमा करने की वजह से हुकूमत ने मेरी जमीन को कब्जा कर लिया है। अब मैं भी भूखा रहता हूँ, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, मेरी बीवी भूखी रहती है। सरकार आप कुछ कहिए ना। सरकार फरमाते कि मैं क्या कर सकता हूँ। कहा, इस वक्त दिल्ली की सरजमीन पे जो बादशाह है वो बादशाह अल्तमश बादशाह है, जो आपके खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा और मुरीद है। यानी सरकार गरीब नवाज के खलीफा कौन है? बख्तियार काकी। उनके खलीफा कौन है? बादशाह अल्तमश। बादशाह अल्तमश पूरे हिंदुस्तान के बादशाह है। उनके कानून के मुताबिक अजमेर की पुलिस ने उस किसान की जमीन को कब्जा कर लिया। टैक्स वक्त पे न चुकाने की वजह से, टैक्स न देने की वजह से जमीन को पुलिस ने अपने हवाले ले लिया। अब वो किसान गरीब नवाज की बारगाह में आके कहा, हुजूर आप कुछ कीजिए। सरकार मुस्कुराने लगे। आपने फरमाया तेरा काम हो जाएगा, मैं पहले नमाज़े असर पढ़ लेता हूँ, नमाज पढ़ूंगा तेरा काम करूंगा। वो किसान मजदूर गैर मुस्लिम भाई वो गेट पे खड़ा है, देखना चाहता है कि गरीब नवाज कैसा काम करते हैं, कैसी सिफारिश में लाया और किस तरह से काम ये करेंगे। नमाज असर जब पूरी हो गई, आप नमाज पढ़े, आपने अपना असा लिया, मसल्ला लिया, आप अजमेर छोड़ दिए। कहाँ के लिए? आप दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अजमेर शरीफ से दिल्ली की मसाफत का अंदाजा उन लोगों को बखूबी है जो लोग जाते रहते हैं। तकरीबन 400 किलोमीटर दूर की मसाफत और डिस्टेंस का सफर करने पर आपने आमादा इख्तियार किया, आपने इरादा किया और वहां से चल दिए। जैसे ही अजमेर शरीफ से आप चले हैं, किसान हक्का बक्का है। किसान सोचता है, मैंने कहा इनसे काम करने के लिए, ये मसल्ला उठाया अपने कांधे पे लटका लिए, ये लोटा उठाया अपने हाथ में ले लिए, इन्होंने असा पकड़ लिया, कहां चल दिए? पीछे पीछे किसान हो लिया। किसान का, हुजूर मेरा काम नहीं होगा क्या? सरकार फरमाते, हाँ मैंने कहा ना तेरा काम होगा, तू अपना घर जा, मैं तेरे ही काम के लिए अजमेर छोड़ के दिल्ली जा रहा हूं। सरकार गरीब नवाज दिल्ली पहुंचने वाले हैं, दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दरबार में खबर फैल गई कि गरीब नवाज आ रहे हैं। अब बादशाह अल्तमश वो बिल्कुल शान के साथ बैठा था। जैसे सुनने को मिला कि सरकार गरीब नवाज जो हमारे पीर के पीर है वो तशरीफ ला रहे हैं, मेरे पास मेरे दिल्ली में आ रहे हैं, फौरन आपने हुक्म दिया, पूरे दरबार को सजाने का ऑर्डर दिया। पूरे दरबार को सजाया गया। गरीब नवाज जैसे अजमेर से दिल्ली पहुंचे हैं, वो बादशाह पीछे पीछे चल रहा है। हुजूर कैसे आना हुआ? हुजूर ये मेरी कुर्सी बादशाह की, आप इस पे बैठ जाए, 2 4 5 10 दिन तक आप यहीं रहे, मुझे खिदमत
साथ है। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया एक छोटा सा काम था, उसी काम की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। बादशाह कहता है हुजूर आपका काम क्या है? कहा काम यह है कि मेरे अजमेर का एक किसान है जिसकी चंद बीघा जमीन तेरी पुलिस ने कब्जा कर ली है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे कहने पर तेरी पुलिस उस किसान की जमीन को छोड़ दे। इतना सुनना था। बादशाह कहता है हुजूर ये छोटा सा काम, इतनी लंबी मसाफत आना और फिर वापसी का इरादा कर लेना, आखिर वजह क्या है सरकार? आप चाहते तो एक मामूली से पर्ची में लेटर लिखकर किसी कासिद के जरिए भेज देते, मैं आपका भेजा खत पढ़ता, फौरन आपके अजमेर के रहने वाले उस किसान की जमीन को मैं वापस कर देता। सरकार वजह क्या थी? क्यों आप 400 किलोमीटर दूर आए और फिर वापस क्यों जा रहे हैं? आपने क्यों नहीं किसी कासिद और मैसेंजर को भेजा? आपने क्यों किसी पैगाम लेकर किसी को क्यों नहीं भेजा? आप फरमाते हाँ बादशाह मैं जानता हूँ, मैं चाहता मामूली सी बात लिखकर किसी पर्ची में तेरे पास भेजता, तू जरूर मेरी बात मानता, उस किसान की जमीन वापस हो जाती। मगर मुझे सिर्फ किसान की जमीन वापस नहीं करवानी थी, मेरा इरादा यह था मैं जब तक 400 किलोमीटर दूर एक आदमी के लिए चलूंगा नहीं, वापस फिर जाऊंगा नहीं, तब तक मैं उसके दिल में अपनी जगह के 400 किलोमीटर दूर चल रहा। देखिए पानी पर तैर के नमाज पढ़ना आसान है, ये करा पर हवाओं में उड़ते हुए नमाज पढ़ना ये आसान है, ये करा पर मगर किसी एक आदमी के लिए, एक आदमी इस तरह से तड़प दिखाए, इस तरह से किसी इंसान का काम आए, ये बहुत बड़ी करामत है साहब। ये सब लोग नहीं कर सकते। हुजूर बैठे हैं, ये हुजूर अगर दुआ दे देंगे तो आप ये बात समझ लेंगे, तसव्वुफ की बात है। यानी एक आदमी के दिल में जब दर्द जगता है किसी इंसान की मोहब्बत का, एक आदमी जब किसी इंसान की हिमायत करना चाहता है, वो आदमी जान जाता है कि सबसे बड़ी इबादत ये है कि आदमी का काम हो जाए। यही तसव्वुफ का वो मेयार था जिसके इस्तेमाल से गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत दे दी थी। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में बहुत तीन चार दिन की मसाफत तय करके एक पंडित आया था, थाक नहीं कह रहा करके कि मैं जाऊंगा, तलवार निकालूंगा, गरीब नवाज के सर को तन से जुदा कर दूंगा। वो 4 दिन से चलकर वो पंडित जैसे ही आपके पास पहुंचा है, सरकार गरीब नवाज ने कहा बहुत परेशान लग रहे हैं, अपनी झोली यहाँ रखिए, ये पानी का लोटा है, आप ले लीजिए, इसको वजू बनाइए, हाथ धोइए, उसके बाद आराम कीजिए, खाना खाइए, नाश्ता खाइए, टिफिन कीजिए, उसके बाद अपना इरादा आप जो है वो जाहिर कीजिएगा। जब गरीब नवाज ने ये दिखाया, वो पंडित जिनका इरादा था, जो अपने मानने वालों को कह के आया था कि मैं आज कसम खा के जाता हूँ वो गरीब नवाज का सरतन से जुदा कर दूंगा, वो पंडित जैसे गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा है, अपनी तलवार निकालने से पहले गरीब नवाज की अखलाक की तलवार देखा है, अपना इरादा भूल गया है, अपना मकसद भूल गया है। गरीब नवाज फरमाते हैं ए पंडित अब ये बता, तू नाश्ता कर लिया, आराम कर लिया, पानी से तूने मुंह चेहरा धो लिया, अब तुझे सुकून मिल गया, अब ये बता कि तेरे यहाँ आने का मकसद क्या था? पंडित कहता हुजूर मेरा मकसद तो बहुत खतरनाक था, मगर मैंने आपका अखलाक देखा, आपका गुलाम हो गया हूँ, दामन बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, करामत ख्वाजा पिया, नाराए तकबीर। अगर यही सूरत, यही कंडीशन, अगर यही चीज अगर हर मुसलमानों में हो जाए, मुसलमान भी अगर हमदर्दी का इस कदर, मुसलमान भी अपने अखलाक की तलवार इस कदर तान दे, तो मुसलमान जहां से मुसलमान गुजरेंगे हर आदमी देखकर उसको मुतासिर होते रहेंगे। आज मैं बारहा कहते रहता हूँ कि काफिरों को कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है। हमारे काफिर कुरान क्यों पढ़ेंगे भाई? उनको अरबी पढ़ना नहीं आती। अगर काफिर इस्लाम समझना चाहते हैं तो हमारे और आपके तरह मुसलमानों को देखकर इस्लाम समझना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि उनके गांव और समाज में जो मुसलमान है उनकी आदत कितनी अच्छी है, वो किस तरह से अपने समाज में डील करते हैं, वो कितना सच बोलते हैं, वो किस तरह से हया का पैगाम अपने समाज में नश्र करते हैं। ये है इस्लाम का सच्चाई का पैगाम जो हर जलसे से एक मुसलमानों को सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। मैंने एक खुतबे में एक आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है तुम ला तुसअलून यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे कल मैदान क़यामत में अल्लाह एक एक नेमत के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह ने जितनी नेमतें हमें दी है, हाथ पांव सर नाखून बाल, ये सारी चीजें ये हमारी दाखिली नेमतें हैं। नाखून से लेकर बाल तक एक एक चीज अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमत है, अल्लाह का एहसान है। कुरान कहता है ये तमाम एहसानात का सवाल कल मैदान क़यामत में अल्लाह हम में से हर एक बंदे से पूछेगा। कुरान का दूसरी जगह फरमान है, कुरान कहता है इन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इफ यू वांट टू काउंट द एंटायर वेल्थ ऑफ अल्लाह यू कैन नॉट काउंट इट।
अगर तुम अल्लाह की सारी नेमतों को गिनना चाहो, तेरी जिंदगी खत्म होगी, मगर अल्लाह की सारी नेमतें तुम नहीं गिन सकते। इतने एहसानात अल्लाह के हमारे ऊपर, इतने इनामात अल्लाह के हमारे ऊपर, मगर कुरान ने क्या कहा? कल मैदान क़यामत में अल्लाह हम में से हर एक इंसान को अपने सामने बुलाकर अपनी दी हुई नेमतों का हिसाब मांगेगा। अल्लाह पूछेगा, बंदा मैंने जो तेरे बाजू में कुव्वत दी थी, इस ताकत का इस्तेमाल दुनिया में तूने कहाँ किया? मैंने तेरी बीनाई मजबूत की थी, इस बीनाई का इस्तेमाल दुनिया में तूने कहाँ किया? मैंने तेरे पाँव मजबूत किए थे, इस पाँव का इस्तेमाल दुनिया में कहाँ तूने किया? आज हम में से अक्सर लोगों के दिल में ये शिकायत रहती है, अल्लाह ने हमको क्या दिया है? अल्लाह तो सारी प्रॉपर्टी फला साहब को दे दी, फला साहब के बेटे को नौकरी लग गई, फला साहब ने फला शहर में जमीन खरीद ली। यानी हमारा मानना है साहब कि जिस इंसान के पास जमीन होती है, अल्लाह का एहसान सिर्फ उस पे होता है। जिस इंसान के पास मकान होता है, अल्लाह का एहसान सिर्फ उस इंसान पे होता है। जिस इंसान को ताकत होती है, अल्लाह का एहसान सिर्फ उस इंसान पे होता है। जिस इंसान को नौकरी मिलती है, अल्लाह का एहसान सिर्फ उस इंसान पे होता है। जिस इंसान को के पास साथ बेटे होते हैं, अल्लाह का एहसान सिर्फ उन पे होता है। मगर मैं क्या कहना चाहता हूँ, हजरत के कदमों की बरकत से नहीं, अगर अल्लाह ने हम में से किसी एक को सिर्फ अगर जिंदा रखा है, ये भी अल्लाह का बड़ा एहसान है। मकान, दुकान, खेत खलियान, प्रॉपर्टी, दौलत और नौकरी, पैसे, ये सारी चीजें बात की चीज है, मगर अल्लाह ने अगर आप में से किसी एक को अगर सांस लेने की ताकत दी है, तो ये भी अल्लाह का बड़ा एहसान है। सांस लेना और सांसों को वापस करना, ये कम बड़ी नेमत नहीं है। एक आदमी जब सांसें लेता है, वो पढ़ा लिखा अगर इंसान है तो जानता है, वो ऑक्सीजन को अपने अंदर डालता है। यानी सांस लेने की सूरत में अल्लाह हमारे लिए ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, और जब सांसें हम अंदर डाल लेते हैं, फिर इसी ली हुई सांसों को वापस करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में वो सांसें जहरीली गैस की सूरत में बाहर आती है। यानी वो हमारा रब जब हमको सांस लेने की ताकत देता है, तब भी हमारे ऊपर डबल डबल एहसानात फरमाता है। अल्लाह अगर हम में से किसी एक को सांस लेने की ताकत दे दे और वापस करने की ताकत छीन ले, तो मौत आएगी। वापस करने की ताकत अल्लाह दे दे और फिर दोबारा लेने की ताकत छीन ले, तो मौत यकीनी है। इसलिए ये शिकायत, ये एहसास कमतरी, ये माहौल, दूसरों की दौलत, मकान पे और उसकी ताकत देखकर जो हम चिढ़ते और जलते और ख्वाहिश और तमन्ना करते हैं उसके तरफ बनने की, ये सब छोड़ दे। अल्लाह से सिर्फ यही दुआ करे, अल्लाह जब तक तू मुझे जिंदा रख, मुझे तू जिंदा रख, अपने हबीब का गुलाम बनाकर जिंदा रख। एक आदमी इस इरादे से जब तक जिंदा रहेगा, मैं मानता हूं उनके पास झोपड़पट्टी होगी, मैं मानता हूं उनके पास दुकान ना होगी, मैं मानता हूं उनके पास मकान ना होगा, वो इंसान अगर जिंदा है, अल्लाह के नबी का दामन पकड़ा है, नबी का कलमा पढ़ता है, नबी की औलाद का दामन पकड़ा है, हुजूर मसूद मिल्लत से जुड़ा हुआ है, हुजूर मसूद मिल्लत से जुड़ा हुआ है, हुजूर दुल्हा पाक से जुड़ा हुआ है, आले रसूल की मोहब्बत उसके दिल में है। अगर वो झोपड़पट्टी में भी रहता है, अगर वो गरीब ही है, वो जब तक यहाँ रहेगा, यहाँ भी कामयाब रहेगा, मरने के बाद वहाँ भी कामयाब। बंदों में से किसी एक बंदे को अपने सामने से हटने की इजाजत नहीं देगा, अल्लाह की कसम। सवाल इंपॉर्टेंट होता साहब, सवाल इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, हर उस्ताद जानता है। अपने शागिर्द से जब उस्ताद कहता है कि कल एक पन्ना हिंदी, एक बंगला और एक पन्ना मैथमेटिक्स के सवाल करके लाने हैं, बच्चा अगर कोई एक काम नहीं किया रहता है, बहाना करता है, उस दिन क्लास नहीं जाता, वो जानता है कि अगर मैं क्लास जाऊंगा मेरे उस्ताद पूछेंगे कि बांग्ला लिखने दिया था, एक पन्ना क्यों नहीं लिखा, एक पन्ना हिंदी का होमवर्क दिया था क्यों नहीं किया, एक पन्ना मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने थे क्यों नहीं किया। इसलिए हर आदमी जानता है सवाल की घड़ी कितनी मुश्किल होती है। एक बाप अपने बेटे को 100 रुपया देकर मार्केट भेजता है साहब, इरादा बाप का क्या है, बाप बेटे से कहता है बेटा मार्केट जा, 100 रुपया से सब्जी खरीद लेना, दाल चावल खरीद लेना, घर की जो जरूरत होती है उस जरूरत के मुताबिक सामान खरीद के तुम लाना। बेटा मार्केट गया है, मार्केट में सब्जी भी ले लिया, दाल भी लिया, चावल भी लिया, 95 रुपीज के खर्च कर दिए, उसने घर के सामान खरीद लिए। आते वक्त उस बेटे के पॉकेट में सिर्फ 5 रुपया शेष बचता है। बेटा सोचता क्या है, 5 रुपया मेरे पॉकेट में बचा है, अब इस 5 रुपया की वजह से वो बेटा परेशान है। वो सोचता है कि एक सिगरेट पी लेता हूँ, एक गुटखा खा लेता हूँ, पान खा लेता हूँ, पूरे पैसे बराबर हो जाएंगे। अब वो बेटा 5 रुपया का सिगरेट पीकर मार्केट से जैसे वापस आया, शाम को बाप भी घर आया है। बाप पूछता है बेटा मैंने सुबह तुझे 100 रुपया देकर मार्केट भेजा था, बेटा उन पैसों में से तूने क्या क्या खरीदा। बेटा आस्तीन चढ़ाता है, आस्तीन चढ़ाकर अपने बाप को हिसाब देता है, अब्बा
میں نے 10 روپیہ کی سبزی خریدی تھی, میں نے 10 روپیہ کی دال لی تھی, میں نے 5 روپیہ کا سلائی لیا تھا, میں نے مٹی کا تیل خریدا تھا. یعنی 55 روپیہ جس کا صحیح استعمال گھر کی چیزوں کے لیے اس بچے نے کیا تھا, اس کا حساب آسانی سے اس کا بیٹا دے دے گا. مگر جیسے ہی باپ پوچھتا ہے, اے میرے بیٹے, میں نے پورے کے پورے 100 روپیہ تجھے دیے تھے, تو 95 کا حساب دے رہا ہے, 5 روپیہ تو نے کیا کیا. اب وہ بیٹا جو غیر اخلاقی طریقے سے اپنے باپ کے دیے ہوئے 100 روپیوں میں سے 5 روپیہ کا اگر ایک سگریٹ پی لیا ہو, وہ بیٹا سنتا ہے کہ باپ کو پورے 100 روپیہ کا حساب چاہیے, بیٹے کی زبان کانپتی ہے, اس کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے, اس کا پاؤں نظر اندام رہتا ہے. بیٹا جانتا ہے میں اگر بول دوں کہ ابا حضور میں نے 5 روپیہ کا ایک سگریٹ پیا ہے, ابا اپنی ڈنڈی اٹھا کر مجھے میری پیٹھ چوڑی کر دیں گے. میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں کلیمی مسلمان سنی بھائیوں, میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں. ایک مسلمان, ایک انسان جب اپنے بیٹے کو 100 روپیہ دے کر مارکیٹ بھیجتا ہے, مارکیٹ سے بیٹا صحیح 95 روپیہ کا استعمال کر کے صرف 5 روپیہ کا غلط طریقے سے ایک سگریٹ پیتا ہے, باپ حساب مانگتا ہے, بیٹے کی زبان کانپتی ہے, چہرے کا رنگ بدلتا ہے, بیٹا تھرتھراتا ہے, دل گھبراتا ہے, چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. تو وہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جب بیٹے کے سامنے بیٹا اپنے باپ کے سامنے, باپ اپنے بیٹے کے سامنے ایک دوسرے سے حساب لیتے اور دیتے وقت گھبراتا ہے, تو انسان کو کیسے حساب دینا ہوگا اس رب کے سامنے جو اللہ پیدائش سے ہماری حفاظت فرماتا ہے, ہمارے لیے ناشتے کا انتظام فرماتا ہے, ہمارے لیے رزق کا انتظام فرماتا ہے. اس اللہ کے سامنے زندگی بھر کا حساب تو چھوڑو, اگر ہم میں سے کسی ایک سے بھی ہمارا رب ایک وقت کی روٹی کا حساب مانگ لے تو بندوں میں کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ کے سامنے ایک وقت کی روٹی کا بھی حساب دے سکے. ہم میں سے کوئی ایسی طاقت نہیں رکھتا ہے. اولاد نبی چاہیں گے تو اللہ چھوڑ دے گا, اولاد نبی کی خواہش ہوگی اللہ چھوڑ دے گا, مگر ہمارے اعمال کیسے ہیں, نہ ہماری زندگی بھر کی عبادت جانچ لی جائے, زندگی بھر میں ہماری عمر کی کون سی وہ عبادت ہے جو ہم جس پر ناز کر سکتے ہیں. ایک ہی چیز ہے جس پر ہم ناز کر سکتے ہیں, کل میدان قیامت میں ہمارا رب اگر ہم سے پوچھ لے, اے بندہ 60 سال کی زندگی میں نے دیا تھا, اسی 60 سال کے پیریڈ میں تیرے بچپنے گزرے, تیری جوانی گزری, تیرے بڑھاپے گزرے, تیرے بال بچے ہوئے, تو نے ناتی پوتے دیکھے, اس 60 سال کی زندگی میں میری دی ہوئی طاقت کا, میری دی ہوئی زندگی کا, میری دی ہوئی عمر کا, میری دی ہوئی دولت کا, میرے دیے ہوئے پیسے کا, میری دی ہوئی سمجھداری کا تو نے کتنا استعمال کیا. ایک بندہ رو کر کہے گا, اے اللہ تو نے 60 سال کی عمر ضرور دی تھی, مگر میں نے بہت زیادہ عبادت تو نہیں کی, مگر اپنی زندگی میں اگر میں نے کسی چیز کو پکڑ کر اپنی کامیابی سمجھی تو حضور مزدور پیا کا اپنی نماز پر اترائے گا, نہیں اترا سکتا. نماز چہرے پہ مار دی جائے گی اگر اولاد رسول کی خواہش اس میں نہ ہو, اولاد رسول کی محبت نہ ہوگی. 50 بار کے حج ان کے چہرے پر مار کے اللہ کہے گا سے تو حج پہ حج کرتا رہا, میرے نبی کی اولاد سے بغاوت کرتا رہا, اب تیری نماز, تیرے حج, تیری عبادت قبول نہیں ہے. اس لیے اگر دامن مل جائے سرکار کی, اگر دامن مل جائے حضور مسعود ملت کے, اگر دامن مل جائے حضور مسرور ملت کے, یہ ناز کرنے کی چیز ہے. ہم اللہ کے سامنے کہہ سکیں گے, مولا تو نے ظاہری اور خارجی جتنی نعمتوں سے سرفراز کروایا تھا, ان سب میں سب سے بیسٹ اور امپورٹنٹ نعمت یہ ہے کہ اللہ تو نے اس گنہگار کو, اس گنہگار کے ہاتھوں میں دامن دیا تو اپنے نبی کی اولاد کر. اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم سے کل میدان قیامت میں اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا. کتنی نعمت ہے اللہ کی. اللہ چاہتا تو ہم کو جانور بنا دیتا, ہم کیا کر سکتے تھے. جیسے ہمارے گھروں میں گاؤں میں کتے بلی ہیں, ہم کو بھی کتا بلی بنا دیتا, لیکن اللہ نے کتا بلی نہیں بنا کر ہم کو انسان بنایا. اللہ کا کتنا بڑا احسان. انسان ہی نہیں, انسان چاہتا تو وہ پجاریوں کی طرح, گھنٹی بجانے والوں کی طرح انسان بناتا, ہم کیا کر سکتے تھے. مگر اللہ نے مندر جانے والوں اور گھنٹی بجانے والوں میں سے نہیں بلکہ مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے والوں میں پیدا تھا, مسلمان بنا کر پیدا تھا. اور مسلمانوں میں بھی وہ ڈھونگ کرنے والے نسلی وہابی مسلمان نہیں بنایا, اللہ نے مسلمان بنایا تو سنی مسلمان بنایا. سنیوں میں بھی اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی, دامن بھی دیا تو اپنے محبوب کے بچوں کا دامن دے دیا.
इतनी नेमतें हैं। और अल्लाह का कुरान कहता है कि कल मैदान क़यामत में हर नेमत का स्वाद होगा। कल अल्लाह पूछ ले कि बंदा अब ये बता कि मेरे महबूब की औलाद का दामन तुझे मिला था, मेरे महबूब की मोहब्बत औलाद से तू मोहब्बत तो करता था, मगर उस मोहब्बत का तकाजा क्या था, उस मोहब्बत का तकाजा क्या था? तो अपने समाज में किस तरीके से मेरे मज़हब के, मेरे नबी के मज़हब की तूने पैरवी की और किस तरीके से उसका प्रचार प्रसार किया। इसलिए अगर सरकार मसूद मिल्लत और मसूद मिल्लत से हमें मोहब्बत है, इनकी मोहब्बत में सरसार हो जाए, जिस कदर हम कुर्बान हो जाए कम है, मगर कुर्बानी का तकाजा यह है कि साथ हमारी नमाज नहीं छूटनी चाहिए। कुर्बानी का तकाजा यह है कि हम ईमानदारी से हम अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करें। कुर्बानी का तकाजा और मोहब्बत का तकाजा यह है कि हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे बूढ़े, सब लोग अल्लाह की इस दी हुई नियामत का सही से इस्तेमाल करें। हर बाप चाहे कि उसका बेटा भी नमाजी बन जाए। एक बाप जिसको दामन मिल गया हुजूर मसूद मिल्लत का, अब जाहिर उसके बेटे को दामन मिलेगा हुजूर मसूद मिल्लत का। मगर अगर बाप नमाजी है तो बाप नमाजी कहे कि अपने बेटे से, बेटा तो कोई मामूली इंसान नहीं है, तेरे हाथ में मेरे पीर के बेटे का दामन है। ए बेटा, मैं नमाज पढ़ता हूँ, तू भी नमाज पढ़, मैं इबादत करता हूँ, तू भी इबादत कर, मैं सच बोलता हूँ, तू भी सच बोल, मैं अच्छाई करता हूँ, तू भी अच्छाई कर। एक नमाजी बाप ये समझ ले, अगर उसने 50 बार नमाजें पढ़ी, 50 साल से नमाजें पढ़ी है, मगर अपने बच्चों को अगर उन्होंने सही तरबियत नहीं दी, तो कल मैदान क़यामत में अल्लाह उस नमाजी बाप को उसके बच्चों की बदुनवानी और बदतमीजी की वजह से अल्लाह उसकी गिरफ्त करवाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है कु अनफुसिकुम व अहलिकुम नारा, सेव योर फैमिलीज मेंबर एंड योरसेल्फ फ्रॉम द फायर व्हिच फ्यूरिज मैन एंड स्टोन्स। अल्लाह का कुरान कहता है कि अपने को और अपने फैमिली के तमाम मेंबर्स को उस भागती हुई आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। यानी अल्लाह का कुरान ध्यान देना चाहता है हम भी इबादत करें, हमारे बच्चे भी इबादत करें, हम भी हया करें, हमारे बच्चे भी हया करें। इतने बड़े मजमे में अगर मैं एक सवाल करना चाहूंगा, आज के डेट में मुसलमान हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा परेशान है, मुसलमानों की परेशानी की एक वजह यही है कि मुसलमानों ने सिर्फ अपनी जबान से नारे लगाना सीखा है। मुसलमानों के सिर्फ ज़ाहिरी कैरेक्टर अच्छे हैं, मगर अंदर से मुसलमानों को जांच किया जाए तो इनका रिश्ता उनके नबी से दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। हमारी महफिलों में नारे लगते हैं, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, मगर उस नारे की सही रूहानियत अगर हमारे दिल को चीर के देखा जाए तो कहीं से रूह नजर नहीं आएगी। हमारी महफिलों में बड़े बड़े नारे जरूर लगते हैं, मगर हम जरा गौर तो करें, हम उस नबी, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ने का दावा किया है, जिस नबी के दामन को पकड़ने का हमने दावा किया है, उस नबी के फरमान पर कितने % हमारा अमल है? अगर आज हम अमल किए होते, कर्नाटक हाई कोर्ट हो या बंगाल हाई कोर्ट हो या हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट हो या वर्ल्ड हाई कोर्ट हो, दुनिया के किसी कोर्ट में ये ताकत न होती जो मुसलमानों की बच्चों के हिजाब को छीनने की बात कर पाते। दुनिया का कोई जज नहीं चाहता कि मुसलमानों की बच्चों को बेहिजाब किया जाए। पहले हमने अपनी बेटियों को बेहिजाब किया है, पहले हमने अपनी निगाहों को बर्बाद किया है। एक मुसलमान पहले बेहया हुआ है, मुसलमानों ने पहले बेहयाई सीखी है, इसके बाद उनकी बच्ची, उनके बच्चे बेहयाई को इस कदर फरोग दिए है। एक मुसलमान जो रात के 12 बजे तक वो फिल्में देखेगा, मोबाइल चलाएगा, वो अपने बेटे को मना नहीं कर सकता मोबाइल चलाने से। एक माँ जो ऑटो मोड पे मोबाइल डालकर किचन में खाना पकाएगी, कभी भोजपुरी, कभी हिंदी, कभी बांग्ला गाना सुनेगी, वो माँ अपनी बेटी से ये तवक्को नहीं कर सकती कि उसकी बेटी कभी मोबाइल के इस्तेमाल से वो हमेशा अपने आप को परहेज रखेगी। नहीं, जब माँ मोबाइल देखेगी, मोबाइल से गाने सुनेगी तो बच्चियां जरूर सुनेंगी। जब बाप फिल्में देखेगा, बाप गालियां बकेगा, बाप नमाजें छोड़ेगा, तो जरूर उनके बच्चे नमाज छोड़ने के आदी बन जाएंगे। इसलिए सच्चाई यही है, हम भी नमाज पढ़े, हमारे बच्चे भी कोशिश करें कि नमाज पढ़ ले, हम भी इबादत करें, हमारे बच्चे भी इबादत करें। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने हुजूर दुल्हा मियां को हुजूर मजूर मिल्लत का दामन पकड़ के हम लोगों ने दीवानगी का सबूत पेश किया है। आने वाली नस्लों में एक एक बच्चे को हम समझा दें, ए बच्चा, जब तक तू जिंदा रहेगा, तेरे पास भी अगर दामन हो तो सरकार मसूद पिया कर हर जाने वाला अपने आने वाले को पैगाम देते चले। जैसे हमने दूल्हा पिया को चाहा, कोई कहे कि हमने गरीब नवाज को चाहा, कोई कहे कि हमने मसूद पिया का दामन पकड़ा। ए बच्चे, तो भी इन्हीं के खानदान से जुड़ जाना।
सच्चाई यही है, इनके खानदान से जुड़ने वाला तो इंसान हमेशा कामयाब रहता है। दुनिया भी चमकती है और आखिरत भी चमकती है। दुनिया अगर ना भी चमके तो क्या मतलब है, मगर आखिरत में असल कामयाबी वो इंसान अपनी निगाहों से देखेगा। एक बाप के लिए बेहतर यह है वो खुद इन चीजों पे अमल करे। एक बुजुर्ग 80 साल का नमाजी बुजुर्ग है, 80 साल उसकी उम्र हो चुकी है। अब 80 साल के बाद जैसे ही वो मस्जिद जाता फौरन रोने लगता, मस्जिद से वापस आता रोता, नमाज पढ़ता रोता, नमाज से पहले रोता, खाने आगे रखे रहते रोता। यानी खाने से पहले, खाने के बाद, सोने के बाद, सोने से पहले, मस्जिद से पहले, मस्जिद के बाद, यानी सुबह शाम हमेशा उठते बैठते 80 साल के बुजुर्ग ने रोने का आदी वो बन गया। उनके बच्चे देखकर परेशान हो गए। उनके पोते पोतियों ने कहा, दादा ये क्या ड्रामाबाजी आप कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं कई महीने से कि आप नमाज पढ़ने मस्जिद जाते हैं, रोते हुए जाते हैं, वापस आते हैं रोते हुए आते हैं। दादा इस कदर आप क्यों रोते हैं? आपके रोने की वजह क्या है? उस 80 साल के बूढ़े ने कहा, बेटा मुझे मेरी मौत याद आ रही है, मैं अपनी मौत को याद करके रो रहा हूं। पोतों ने कहा, दादा ये कौन सी नई चीज है? सिर्फ आपको थोड़ी मरना है, इस कायनात में जो जो पैदा हुआ है, जिन जिनको अल्लाह ने पैदा किया है, हर पैदाइश वाली चीज को मौत आएगी। फिर हम लोग कहां रो रहे हैं? मेरे अब्बा नहीं रोते, मेरी अम्मी नहीं रोती, मेरी दादी नहीं रोती, सिर्फ आप रोते हैं। दादा कहता है, पोता मैं अपनी मौत को याद करके नहीं रो रहा हूं, बल्कि मौत के बाद जो हिसाब किताब अल्लाह लेगा, उस हिसाब किताब के मरहले को देखकर उसको महसूस करके रो रहा हूं। पोतों ने कहा, दादा सिर्फ आपसे हिसाब थोड़ी होगा, हिसाब मुझसे भी होगा, अब्बा से होगा, आपसे होगा, दादी से होगा, अम्मी से होगा, कायनात के हर शख्स से होगा, मगर हम लोग कहां रो रहे हैं? सिर्फ आप ये रोना चालू किए हुए हैं। दादा कहता है, मेरे बच्चों मैं जानता हूं कि हिसाब तुमसे भी होगा, मुझसे भी होगा, मगर तेरा हिसाब कुछ और होगा, मेरा हिसाब कुछ और होगा। तुमसे सिर्फ तुम्हारे बारे में अल्लाह पूछेगा, मगर मुझसे मेरे बारे में पूछेगा, और मुझसे तुम जैसे बदतमीज बच्चों के बारे में भी पूछेगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, तुम्हारी चिंता है। अब ए मेरे बच्चों, अगर तुमको तेरी ख्वाहिश है कि तेरा दादा जन्नत चला जाए, तो एक ही पैगाम तेरे लिए है, तुम नमाज का आदी बन जाओ, तेरा दादा जन्नत चला जाएगा। तुम सच बोलो, तेरा दादा को अल्लाह जन्नत भेजेगा। तुम इबादत करोगे, तेरे इबादत की बरकत से तू भी जन्नत जाएगा, तेरा दादा भी जन्नत जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आदमी खुद सुरक्षित रहे और अपनी औलाद को भी सुरक्षित रखे। ये सबसे बेस्ट पैगाम इस जलसे से है। जलसा कोई मामूली काम नहीं है साहब। 1 महीने 1.5 महीने से चलता करके लोग परेशान होते हैं, हुजूर के कदमों की बरकत से तब जाकर जलसे में कामयाबी मिलती है। उलमा खुतबा शोरा आते हैं, ये पैगाम होना मिलना चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए। इस अजीम शान जलसे से यही पैगाम आपके लिए है। आपने तो हुजूर मसूद पिया का दामन पकड़ के आपने कामयाबी पाली है, मगर अपनी आने वाली नस्लों को आप ये पैगाम देके जाएंगे, बच्चों जिस तरीके से हम लोग इनके दामन से लिपटते रहे, जिस तरीके से इनकी आमद की खबर हो गई तो पूरा समाज में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने अपना काम कारोबार छोड़ के हजरत के पास आकर हजरत से पैगाम सुनकर उनके फरमान पर अमल करने को बिल्कुल कोशा है। एक आदमी अपने आने वाली नस्लों को भी यही पैगाम दे के, मेरे बच्चों तुम तब कामयाब हो, तब कामयाब नहीं कि तेरा मकान मालदा में हो, फरक्का में हो, कोलकाता में हो, गुजरात में हो, मुंबई में हो, तेरा मकान कहीं हो ना हो, मगर तेरे दिल में हजरत की मोहब्बत रहे, तब तुम कामयाब हो। हर आदमी अपनी औलाद को ये पैगाम दे। ये इंशाअल्लाह आप लोग अपनी औलादों को बताएंगे, इंशाअल्लाह बताएंगे। देखिए जब तक एक बाप नहीं चाहता ना साहब, तब तक उनकी औलाद कुछ नहीं करती। एक बाप पहले शरीयत की बगावत करता है, एक बाप पहले शरीयत का मुनहरिफ होता है, एक बाप पहले नमाज छोड़ता है, एक बाप पहले उलमा और पीरान की मोहब्बत को अपने दिल से निकालता है। आदमी झटके में बोलता है पीर साहब आए तो आए, हाँ अपने काम बजा। नहीं, पीर साहब सबके यहाँ नहीं आते हैं, जिसकी किस्मत बननी रहती है उन्हीं के घर पीर साहब आते हैं। पीर साहब लोगों के पास तो एक सेकेंड के लिए वक्त नहीं। अगर हजरत चाह दें तो हिंदुस्तान के हर मुसलमान अपने घर में महीनों के लिए रखना चाहे, मगर यह आपकी मोहब्बत होती है कि आपके यहाँ हजरत आ जाते हैं आप पर एहसान करने के लिए, आप पर हम पर एहसान करना होता है, तब अपना घर छोड़ते हैं, अपने दीवारों के बीच आते हैं। तो जब भी हजरत का क़याम हो तो हजरत से एक आदमी जब खानकाही होता है ना साहब, तसव्वुफ का एक बाप ये भी है कि आदमी जब खानका चला जाए या साहिब सजादा को देखे तो उनको देखकर उनके तरफ पैसे वाला बनने की कोशिश ना करे, माल ना चाहे अल्लाह से, बल्कि एक पीर को देखकर आदमी अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह जिस तरीके से हमारे पीर को तूने अजमत बख्शी है, अल्लाह उनकी खैरात मुझे भी ले ले।
یا اللہ جس طرح میرا پیر جاتا ہے سمن یہ جاتا ہے میلہ لگ جاتا ہے، اللہ میں بھی جاؤں تو 2-4-10 لوگ میرے پیچھے چلے جائیں۔ یہ کب ہوگا؟ پیر صاحب سے پوچھئے یہ مقام کب ملتا ہے؟ یہ مقام تب ملتا ہے ایک آدمی جب خود اللہ اور اس کے رسول کو ہوتا ہے، پوری قوم کو اللہ اس کا دیوانہ بنا دیتا ہے۔ ہم اگر پیر صاحب سے صرف ان کے مرید ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہیں، جب تک دیوانگی نہیں آئے گی تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ابھی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اتنے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سارے علماء میں سے سب سے زیادہ اس وقت وہاں پر بیٹھ کر میں آرام سے تھا۔ کیوں آرام سے تھا؟ کیونکہ حضرت جہاں بیٹھے تھے حضرت کے بغل سے ہوا آ رہی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی۔ اب جو لوگ ان سے دور تھے ان کو یہ ٹھنڈی ہوا کا احساس نہیں ہو پایا، جو قدموں پہ لپٹ گئے ہوا کا مزہ وہ بھی لینے لگے۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ آل رسول سے محبت اور نسبت اور قرابت کا فائدہ جب دنیا میں اسٹیج پہ اللہ اتنا دیتا ہے، کل میدان قیامت میں اللہ کیسے چھوڑ دے گا؟ بے شک حق ہے۔ امام پاک جن کی اولاد نے اور خود امام پاک نے ساری دنیا کو سب سے زیادہ اسلام بچانے میں پیغام دیا، اپنی جانوں کی قربانی دی، وہ امام پاک جو جاتے جاتے شہادت کا جام نوش کرتے کرتے اپنی اولاد کو اب کہہ گئے کہ حالات چاہے جو بھی ہو مگر جب اسلام بچانے کی باری آئے گی تو سارے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے مگر میرے بچے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کے صلب میں ان کے ضمیر و خمیر میں بہادری ودیت گر گئی ہے۔ بہادر ہوتے یہ لوگ، یہ نکل جاتے ہیں میدان میں، دیکھتے نہیں کہ کون ہے یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا ان سے جن کی قرابت ہوگی، جس قدر جو جتنے قریب ہوں گے وہ اس قدر اتنا کامیاب ہوں گے، جن کو جتنی محبت ہوگی وہ اس قدر اس دنیا اور آخرت کی دنیا دونوں دنیا میں وہ انسان کامیاب رہیں گے۔ اس لیے جب بھی پیر صاحب آئے تو ہم دست بوسی کے لیے، ہم ان سے ملنے کے لیے، ہم ان سے پیغامات لینے کے لیے، ہم ان سے وہ راز و رموز جاننے کے لیے ہم کوشش کریں کہ حضور ہم کیسی دنیا گزارے کہ جہاں ہماری دنیا کو دیکھ کر ہمارے بچے بھی سدھر جائیں۔ حضور ہم اپنی بیٹیوں کو کیا پیغام دیں؟ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اگر وہ اپنی بیٹی کو باپردہ کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے ایک سٹیک مسئلہ یہی ہے کہ وہ آدمی خود اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، وہ آدمی خود پردے کا اہتمام کرے۔ 80 سال کے بوڑھے کا واقعہ میں اکثر بتاتا ہوں، اتنا زبردست واقعہ ہے، اتنا غریب انسان آج اس زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ 3 دن ہو گئے تھے وہ بوڑھا کھانا نہیں کھا پایا، 3 دن ہو گئے اس کے گھر میں ایک جوان بیٹی 18 سال کی بیٹی پل رہی ہے۔ اس 18 سالہ بیٹی کو دیکھ کر بوڑھا گھبرا گیا۔ بوڑھا کہتا ہے بیٹی کیسے دن گزر رہے ہیں؟ بیٹی کہتی ہے ابا محلے اور پڑوس سے کھانے آتے ہیں، گاؤں سے کھانے آتے ہیں، روٹیاں آتی ہے، اسی روٹیوں کو کھا کے میں اپنی راتوں کو گزارا کرتی ہوں۔ ابا آپ کام کرنے نہیں جائیں گے تو آپ کی بیٹی کیا پکائے گی؟ ابا کل سے آپ کام کرنے جائیے گا۔ 80 سال کا بوڑھا ہے مگر باپ ہوتا ہے صاحب، چاہے اس کی عمر 80 سال ہو جائے یا 90 سال ہو جائے، بیٹی اپنی خواہش اگر باپ کے سامنے رکھ دیتی ہے تو ہر حال میں ایک باپ چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کی خواہشات کی تکمیل کرے۔ آج اس زمانے میں بھی اگر ایک باپ کے پاس فون چلا جائے بیٹی کا، ابا مجھے ایک فریج چاہیے سمسنگ کمپنی کی، ابا مجھے واشنگ مشین چاہیے، ابا مجھے کولر مشین چاہیے، ابا مجھے اے سی مشین چاہیے۔ ایک بیٹی اگر باپ کو فون کر دے 80-90 سال کی عمر میں بھی باپ حد تک امکان کوشش کرتا ہے اس کو اوور ٹائم کھٹنا پڑے وہ کھٹے گا مگر بیٹی کی خواہشات کی تکمیل کرے گا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے وہ دلی، ممبئی، پنجاب، ہریانہ، کلکتہ پوری دنیا میں گھوم کر اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے سامان کا اکٹھا کرتا ہے تاکہ اس کی بیٹی کو سسرال میں تکلیف نہ ہو۔ یعنی ہر زمانے میں باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی خوش رہے، اس کے چہرے پہ کبھی آنسو کے قطرات نہیں ٹپکے۔ اب وہ باپ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹی جب تم کہتی ہو تو میں جاؤں گا مارکیٹ کام کی تلاش میں، مگر بیٹی 80 سال کی اس عمر میں تیرے باپ کو یہ امید نہیں ہے کہ تیرے باپ کو کوئی کام مل جائے گا۔ مگر بیٹی کا پریشر اور دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ وہ باپ جھولی پکڑا، نماز فجر پڑھا، باپ چلا گیا مارکیٹ کام کی تلاش میں۔ پورا دن مارکیٹ میں ایک باپ گھومتا رہا، کام کی تلاش میں چکریں کاٹتا رہا۔ شام ہو گئی، باپ کو کام نہ ملا، واپس گھر کی طرف بڑھا ہے۔ دروازے پر بیٹی بھی کھڑی انتظار کر رہی ہے باپ کی آمد کا، اس امید کے ساتھ کہ ابا شام ہوتے ہی جھولی بھر کے سامان لائیں گے، دال چاول سبزی لائیں گے۔ کئی دن کے بعد آج کھانا پکاؤں گی، آج روٹی پکاؤں گی، سبزی پکاؤں گی، آج کئی دن کے بعد کھانا کھاؤں گی۔ مگر کیا معاملہ دیکھتی بیٹی ہے کہ باپ جیسے دروازے پہ آیا، بیٹی کی نگاہ باپ کی نگاہوں سے باپ میں ٹکرائی۔ بیٹی پہلے اپنے باپ کے ہاتھ سے لگی، خالی جھولی کو دیکھ کر رونے لگی، کہنے لگی ابا
हाथ में झोली तो खाली है। अब्बा आपने चावल का इंतजाम नहीं किया, बेटी क्या खाएगी? अब्बा आपने सब्जियां नहीं खरीदी, बेटी क्या पकाएगी? अब्बा आपने आटे नहीं लिया, बेटी क्या पकाएगी? एक बाप जब सुनता है कि उसकी बेटी कहती है मैं क्या खाऊंगी, क्या पकाऊंगी, अपनी बेटी के हाथ को पकड़ के बूढ़ा बाप कमरे में दाखिल हुआ और बेटी को कहता है, ए बेटी सुन ले, तेरी रात गुजारने का एक सटीक फार्मूला देता हो, बेटी सब्र कर ले, बेटी तुम साबिर के औलाद हो, सब्र कर ले। ए बेटी अगर तू सब्र करेगी, तेरे सब्र की बरकत से अल्लाह तेरे बाप को इससे बेहतर बदला कल अता फरमाएगा। एक बाप अपनी बेटी को समझाता है, बेटी रात गुजारनी है, कल की शाम, कल अगर तूने नमाज इशा के बाद सिर्फ एक पारे कुरान पढ़े तो आज तू 2 पारा पढ़ दे, तेरी रात गुजर जाएगी। कल रात अगर तूने सिर्फ 4 रकअत तहज्जुद की नमाज पढ़ी तो आज 12 पढ़ दे, तेरी रात गुजर जाएगी। यानी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन और खतरनाक मोमेंट में भी एक बाप अपनी बेटी से पैगाम देता है, बेटी नमाज न छूटे, इबादत न छूटे, तिलावत न छूटे। एक बाप समझाना चाहता है, सिचुएशन चाहे कितना ही खतरनाक हो जाए मगर अल्लाह के नबी का दामन इंसान अपने हाथ से न छोड़े। आज हम में से अक्सर लोगों को कहा जाए तो उस आदमी के पास जिसके गाड़ी में तेल हो, नमाज पढ़ने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़े। अभी रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, किसी को मामूली सी प्रॉब्लम हो जाए, तबियत में गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो, शुगर का प्रॉब्लम हो, हार्ट का पेशेंट हो, वो आदमी दवाइयां पॉकेट में लेके घूमता है कि मौलवी साहब मेरी तबियत खराब है, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैं कैसे रोजा रख सकता हूँ। यानी आदमी मामूली सी बीमारी की वजह से इबादत छोड़ता है, रोजा तोड़ता है, नमाज छोड़ता है, इबादत से दिल तोड़ देता है। मगर ऐसे इंसान को सबक लेना चाहिए। उस गरीब इबादत गुजार मजदूर इंसान की बेटी और उस इंसान के पैगामात पर बेटी भी 3 दिन की भूखी, बाप भी भूखा है, मगर बाप ये नहीं कहता कि बेटी बगैर नमाज पढ़े सो जा, बगैर इबादत करे सो जा, बल्कि पहले से ज्यादा नमाज की तलकीन आज बाप कर रहा है, पहले से ज्यादा कुरान पढ़ने की तलकीन बाप आज कर रहा है। अब बेटी क्या की, पूरी रात तिलावत करती रही, सुबह नमाज फजर के बाद फिर दूसरी सुबह को बेटी अपने बाप को झोला पकड़ा के मार्केट भेज दी। बाप मार्केट गया है, शाम तक मार्केट में रहा, वापस आया है, मार्केट से जैसे बाप वापस आया, बेटी देखती है आज भी अब्बा खाली झोली लेकर वापस आया है। फिर बेटी रोकर कहती है, अब्बा आप कमाएंगे नहीं तो आपकी बेटी क्या पकाएगी, क्या खाएगी, क्या चूल्हे पर रखेगी। बाप फिर दूसरा दिन जाता है, तीसरा दिन जाता है, चौथे सुबह को एक बेटी अपने बाप को आखिरी अल्टीमेटम देकर मार्केट भेजते हुए कहती है, अब्बा ये लास्ट चांस है आपके लिए, अगर आज आपने कमा के आटा दाल चावल का इंतजाम नहीं किया तो याद रखा जाए अब्बा आपकी बेटी कोई गलत रास्ते पर कदम उठा देगी, किसी गलत रास्ते पर चलने पर आगे बढ़ जाएगी। अब्बा बेहतर यह है कि आप आज रोटी सब्जी चावल का इंतजाम कर दीजिए। अब वो बूढ़ा जो 3 दिन पहले से मार्केट जाता रहा, चौथी सुबह को जब मार्केट गया है, काम की तलाश में मार्केट में घूम रहा है, चारों तरफ घूमता रहा, घूमने की परेशानी अलग, भूख की परेशानी अलग, वापस आने की परेशानी अलग। फिर वापस आते ही जैसे दरवाजे पर बूढ़ा खड़ा हुआ है, थोड़ी देर अभी कुछ बोलना चाह रहा था कि वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। 18 साल की बेटी देखती क्या है, 80 साल का बूढ़ा बाप उसके सामने भूख से तड़प रहा है। बेटी समझ गई, अब्बा 3 दिन लगातार मार्केट गए, मार्केट में काम की तलाश में घूमते रहे, वापस आते रहे, मार्केट जाने की तकलीफ, वापस आने की तकलीफ, मार्केट में घूमने की तकलीफ, 80 साल की उम्र की तकलीफ, चौतरफा तकलीफ की शिद्दत से एक बूढ़ा बेहोश होकर जब जमीन पे गिरा है, वो जवान लड़की बूढ़े बाप को अपने बाजू की दोनों ताकत, मुश्तरका ताकत से अपने बाप को अपने कमरे में ले जाकर सुलाती है और रात भर सोचती रही कि कहां से रोटी का इंतजाम हो, कहां से सब्जी का इंतजाम हो, कहां से चावल का इंतजाम हो। रात के आखिरी पहर एक गली में मुसलमानों सुनो, उस गरीब मुसलमान बेटी क्या सोचती है। रात के आखिरी पहर उस नमाजी की बेटी के दिमाग में, इबादत गुजार इंसान की बेटी के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। बेटी सोचती है मैं मार्केट जाऊंगी, मार्केट जाकर अपना दुपट्टा खोल दूंगी, अपनी इज्जत का सौदा करके 2-4 पैसे ले लूंगी, उसी पैसे से रोटी का इंतजाम करके अपने बाप को खिलाकर मरने से बचा लूंगी। एक गरीब इंसान की गरीब बेटी मार्केट भाग गई, उधर नमाज फजर की जैसे अजान हुई, बूढ़ा जैसे उठता है, देखता क्या है, बेटी कमरे में है नहीं। चारों तरफ बेटी का इन्वेस्टिगेशन किया, पड़ोस में तलाश किया, कहीं बेटी का कोई अता पता न चला। वापस वो बूढ़ा उसी कमरे में दाखिल हुआ जहां पर हमेशा वो नमाजें पढ़ा करता था, कुरान पढ़ा करता था। उसी कमरे में दाखिल होकर अपनी पेशानी सजदे में रखकर अल्लाह से मुतालबा कर रहा है, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, मैंने बड़ी नमाजें पढ़ी, बड़े सजदे किए, बड़ी इबादतें की, अगर तूने मेरे एक सजदे को भी कबूल फरमाया है
सजदे का तुझे वास्ता है। ए अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत फरमा ले, मेरी बेटी की इज्जत की मुहाफजत फरमा ले, मेरी बेटी को बचा ले। एक बूढ़ा बाप अपनी पेशानी सजदे में रखकर अपनी बेटी की इज्जत के प्रोटेक्शन के लिए अपने हुजरे से अल्लाह से मुतालबा कर रहा है। उधर शाम होते ही खटखट की आवाज दरवाजे से सुनाई दी। बाप किल्ली खोलता है, देखता क्या है, सुबह की भागी बेटी शाम को दरवाजे पे खड़ी मुस्कुरा रही है। बाप अपनी बेटी को देखकर कभी पेशानी चूम रहा है, कभी रुखसार का बोसा ले रहा है और रो रो कर कहता है, बेटी कहां भाग गई थी, बेटी क्यों भाग गई थी, बेटी कहां चली गई थी। बेटी कहती है, अब्बा आपकी बेटी देख रही थी कि 3 दिन से लगातार हम मार्केट काम की तलाश में जा रहे थे, 4 दिन तक जाते रहे, कोई काम न मिला। अब्बा मैं समझ गई कि अगर मैं घर पे बैठी रही और आप मार्केट जाते रहे तो घर में आप भी भूख से मर जाएंगे, मैं भी भूख से मर जाऊंगी। अब्बा मैं अपनी इज्जत को बेचने के लिए मार्केट के सदर दरवाजे पर खड़ी थी। एक गैरतमंद बाप जब सुनता है, नमाजी बाप सुनता है, इबादत गुजार बाप सुनता है कि उसकी बेटी इज्जत बेचने के लिए मार्केट गई थी, अब वो बाप कहता है, बेटी जल्दी से बता किन किन लोगों ने तेरे बदन को टच किया, किन के इस्तेमाल में तुम आई। अब बेटी कहती है, अब्बा कसम खुदा की मैं गलत इरादे से मार्केट जरूर गई थी, मगर ए अब्बा मार्केट के जिस दरवाजे पर मैं सुबह खड़ी थी शाम तक वही खड़ी नहीं। कोई मुझे क्या टच करता, कोई मुझे क्या इस्तेमाल करता, किसी ने मेरी तरफ गलत निगाह उठाकर भी नहीं देखा। बाप कहता है, ए मेरी बेटी कैसे तेरी तरफ कोई गलत निगाह उठाकर देखेगा, जबकि मैं 80 साल का तेरा बूढ़ा बाप आज तक किसी की बेटी को गलत निगाह करेगा। यानी एक बाप अपने निगाहों की हिफाजत करता है ना, वो बाप दावे से कह सकता है कि उसकी बेटी भी सुरक्षित रहेगी। एक भाई, बड़ा भाई अगर वो अच्छाई करता है ना तो वो दावे से कह सकता है कि उसका छोटा भाई भी अच्छाई करेगा। ये जलसे का इंपॉर्टेंट पैगाम हजरत के कदमों की बरकत से इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करूँगा मुसलमान हम अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी बच्चों की तालीम का बेहतर बंदोबस्त करें। आज हमारा हिंदुस्तान सबसे ज्यादा आज मुसलमान जो यहाँ पर पीड़ित है वो इस वजह से नहीं कि किसी जालिम की हुकूमत हो गई है। आज मुसलमान जो सबसे ज्यादा परेशान है, हमारी परेशानी की वजूहात बताते हुए कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम व्हाट मिसफॉर्चून्स बिफॉल्स ऑन यू इट इज बिकॉज़ योर हैंड हैज गैदर्ड इट। कुरान कहता है कि जितनी तबाही देख रहे हो ना, ये सारी तबाही इसलिए नहीं कि कोई जालिम हाकिम बन गया, इसलिए नहीं कि यूपी में कोई ढोंगी आ गया, इसलिए नहीं कि कोई जालिम शासक बन गया, बल्कि इसलिए है कि आज तुमने ऐसे बदकिरदारी का मुजाहरा किया है जिसकी वजह से अल्लाह ने इतनी तबाही तेरे सभा के नाज़िल फरमाई। हम अगर अपनी निगाहों की मदद करेंगे, पर्दे का एहतमाम करेंगे, किसी जालिम को यह ताकत न होगी कि हमारी बेटी के दुपट्टे को छीनने की बात करेगा। हम अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ाएं या स्कूल में पढ़ाएं, मगर हम बच्चों को पैगाम दें कि बेटी तुम मार्केट जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, घर से बाहर जैसे निकलो अपनी निगाहों की हिफाजत करो, पर्दे में रहो। एक आदमी जब अपनी बच्चों को पर्दे में रहने की तलकीन करेगा, उसकी बच्चियां यहाँ पर्दे में रहेगी, उसके बाप को इसका बेहतर बदला मरने के बाद मिलेगा। ये पैगाम इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि चंद पैगाम हज़रत के कदमों की बरकत से मैंने अब तक